Good morning, student. Today we shall read lesson number 7 from your book, The Footprints of Without Feet. And the name of the lesson is The Necklace. So, in this lesson, the author wants to convey the message that we should not be excessive desirous in our life. We should be satisfied, we should be contented with what we have. To prove his point, he create a character, Madame Loisel, and she was excessive desirous. She was beautiful, but because of her excessive desirous aspirations, vanity of life, discontentment, she had to work hard for 10 years and it cost her almost entire youthful days. She borrowed a necklace from her friend for the party to adorn herself, but unfortunately she lost the necklace, and to replace the same kind of necklace to her friend, Madame Frostier, who was her friend, she suffered a lot. So we should not be excessive desirous. The author wants to convey the clear messages that we should be contented with what we have. So let's see what happened Mrs. Loisel and how does she create trouble for herself. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress, but no jewelry. मैटिल्डा को एक पार्टी के लिए बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है. उसके पास ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड. एक फ्रेंड से वो बोरो करती है, उधारा लेती है. एंड लूजेज इट. इसको खो देती है. शी हैड लॉस्ट इट. व्हाट हैपन्स देन. फिर उसके साथ जो होता है वो you will come to know what happens. The writer asks some questions, give some knowledge about these questions. What kind of person is Mrs. Loisel? Why is she always unhappy? What kind of a person is her husband? Mrs. Loisel कैसी थी? मिस्टर लॉयजल की नेचर कैसी थी? मिसेस लॉयजल अनहैप्पी रहती थी बिकॉज ऑफ हर डिसकंटेंटमेंट टुवर्ड्स लाइफ. अनडाउटेडली शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज बोर्न टू ए क्लर्क and was also married to a clerk, and due to being excessive desirous, she always dreamed of a luxurious life which was not possible for her. So let's see and read it out. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. वो उन सुंदर महिलाओं में से थी जो भाग्य की गलती के कारण, error of destiny, mistaken of luck, से into a family of clerk. एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो जाए. She had no dowry, कोई दहेज नहीं. No hopes, कोई उम्मीदें नहीं. No means of becoming known, और प्रसिद्ध होने के कोई संसाधन नहीं. Loved, उसको प्यार किया जाए ऐसा कोई उसकी किस्मत नहीं. And married by a man either rich or distinguished, और किसी रिच व्यक्ति के साथ, वो डिस्टिंग्विश्ड एक स्पेशल व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाए, ऐसी उसकी किस्मत नहीं थी. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क, और उसने अपने आप को अलाउ किया एक पेटी छोटे से तुच्छ क्लर्क के साथ शादी करने के लिए इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन बोर्ड के क्लर्क के साथ, जिसको वो पेटी बोलते, तुच्छ सा क्लर्क के साथ शादी करने की उसने हामी भरी, अलाउ किया. She was simple but she was unhappy. सिंपल थी लेकिन ना खुश थी. She suffered incessantly, continuously
फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, अपने आप को क्या मानती थी वो कि वो जो पैदा हुई थी वो सभी लग्जरियस जो थिंग्स होते ऑफ लाइफ उनको अटेन करने के लिए पैदा हुई है। शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड वोर्न चेयर्स, उसको बड़ा दुख होता, सफर थी इस भावना से, वो दुखी थी किससे, अपनी गरीबी से, घर की गरीबी से। एक क्लर्क के घर में पैदा होना और एक क्लर्क के साथ शादी करने को वो एक गरीबी मानते थे, एंड दैट पुट हर इंसेसेंटली इनटू ट्रबल। शैबी वॉल और पुरानी दीवारें, वोर्न चेयर और टूटी फूटी कुर्सियां, पुरानी चेयर्स को वो वोर्न बोलते थे। All these things tortured and angered her, ये सारी चीजें उसको टॉर्चर करती, उसको यातना से देती और उसको गुस्सा दिलाते थे। When she seated herself for the dinner opposite to her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, जब उसके पति के सामने वो डिनर के लिए बैठते तो उसका पति ट्यूरिन एक पोर्ट होता है उसके ढक्कन को हटा के डिलाइटेड खुशी के साथ कहता, क्या, ओह गुड पोट पाई, बहुत अच्छा व्यंजन है, एंड आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ही वॉज सेटिस्फाइड। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर एंड थॉट ऑफ एक्सक्विजिट ऑफ फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, और उसके सौपन क्या थे कि इस डिशेज को वो कुछ नहीं मानते थे, एक पुअर थिंग्स मानते थे, और वो अपने लिए क्या सोचते, एलिगेंट डिनर, एक शानदार भोज उसके लिए, शाही, और वो भी ऑफ शाइनिंग सिल्वर में आए, सिल्वर के पोर्ट में, से थोड़ा ऑफ एक्सक्विजिट ऑफ फूड, और अति उत्तम भोजन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, और अच्छी अच्छी डिशेज में, बर्तनों में उसके लिए सज धज के आए। वो ऐसी उसकी डिजायर थी, एस्पायरेशन थी। She had neither frock nor jewels, और न तो ज्वेलरी थी उसके पास और न ही फ्रॉक था अच्छा, and she loved only those things, और वो खाली उन्हीं चीज़ों को प्यार करती थी जो लग्जरियस थी। She had a rich friends, a schoolmate at convent स्कूल में उसका एक फ्रेंड था, मैडम लॉइजल का, कि एक महिला मित्र थी, who she did not like to visit, जिससे वो मिलना पसंद नहीं करते थे। क्यों? She suffered so much when she returned, उससे जो मिलती वह घर वापस आते तो पीड़ित हो जाती थी एक भावना से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पूरे दिन हताशा में, निराशा में, दुख में वो रोती रहती, इसलिए वो उसके साथ, अपने मित्र के साथ वो मिलना जुलना उसको पसंद नहीं था। One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope, एक दिन शाम को उसका पति elated खुशी के साथ घर पे वापसी करता है और हाथ में एक एनवेलोप लेके, एक लिफाफा लेके, here he said, here is something for you, यहाँ आपके लिए कुछ है, उसने ऐसा कहा पत्नी को खुश करने के लिए, to make her happy. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, एनवेलोप में से उसने एक कार्ड निकाला जिसके ऊपर इंस्क्राइब्ड लिखा हुआ था, प्रिंटेड था, रिटन था। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू आस्क्ड द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। एजुकेशन मिनिस्टर अपने घर में मिस्टर और मिसेस लॉइज की प्रेजेंस चाहते हैं पार्टी के लिए, ऐसा उसमें लिखा था। ओनर उसका बढ़ाए पार्टी का सम्मान। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज अ हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि पति ने उम्मीद की थी, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, घृणा से उसने इन्विटेशन को फेंक दिया अपॉन द टेबल, मर्मरिंग, बुदबुदाते हुए उसने उस इन्विटेशन कार्ड को फेंक दिया, नाराजगी के साथ, घृणा के साथ, स्पाइटफुली, हेटफुली। What do you suppose I want with that? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? उसने ऐसा कहा पत्नी ने पति को कि मेरे से क्या उम्मीद करते हो, क्या सपोज करते हो? I want with that, कि इसके साथ मुझे खुश देखना चाहते हो। But my dearie, I thought it would make you happy. लेकिन
पति ने कहा मिस्टर लॉयजल ने मिसेस लॉयजल को, मैंने सोचा कि इससे आप खुश हो जाओगे। यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाते हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और यह एक अवसर भी है, एंड ए फाइन वन, और एक अच्छा मौका भी। एवरीबडी विशेज वन, और हर व्यक्ति ऐसा चाहता है, एंड इट्स वेरी सेलेक्ट, और मिनिस्टर ने खास खास लोगों को वहाँ पे बुला रखा है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कई लोगों को नहीं है इन्विटेशन, ये स्पेशल है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और वहाँ पे आप ऑफिशियल लोगों को वहाँ पे देखोगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, अधीरता के साथ उसने कहा, और अपने पति को इरिटेटली चिढ़ते हुए देखा। लुक्ड एट हिम, अपने पति की तरफ चिढ़ते हुए देखा, और अधीरता के साथ क्या कहा, What do you suppose I have to wear to such things as that? ऐसी पार्टीज के लिए तुम क्या उम्मीद करते हो, मेरे पास है क्या पहनने के लिए? He had not thought of that. उसने सोचा मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। He stammered, वो बेचारा थोड़ा सा अटक के बोला, हकलाया। Why the dress you wear when we go to theater? वो जो ड्रेसेस तुम थिएटर के लिए पहनते तब हम जाते हैं, उसके बारे में कहा, वो क्यों नहीं? इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी हैं। ही वाज साइलेंट, स्टुपेफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को ये बात उसने कहा कि थिएटर में तब हम जाते हैं, उस समय तुम जो ड्रेस पहनते हो अच्छे, लेकिन वो रोने लगे। ये बात देखे वो साइलेंट, बेचारा चुप हो गया मिस्टर लॉयजल। स्टूपिफाइड, बिल्कुल शॉक्ड हो गया। इन डिसमे, दुख में, पीड़ा में, जब उसने पत्नी को रोते हुए देखा। ही स्टैमर्ड, बेचारा हकलाया। व्हाट इज मैटर, क्या बात हुई? व्हाट इज मैटर, फिर पूछा बात बताओ क्या हुई। बाय ए वायलेंट एफर्ट्स, बड़ी कोशिश के बाद, सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, उसने अपनी नाराजगी को छिपाते हुए अपनी पत्नी मिसेस लॉयजल ने अपने भरसक प्रयास से कंट्रोल किया अपनी नाराज़गी को, और रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, शांत आवाज़ में क्या कहा, वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने गालों पे जो आंसू आ गए थे उसको ऐसे पूछते हुए उसने कहा, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली, कि मेरे पास ड्रेस नहीं है। आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कहता है कि ये अपने उस कॉलीग को दे दो जिसकी पत्नी के पास मेरे से अच्छे ड्रेसेस हैं। ही वॉज ग्रीव्ड, बेचारे को बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ, बट आंसर्ड, लेट्स सी, जवाब जाके चलो देखते हैं। मैटिल्डा, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, उसने पूछा अपनी पत्नी से, एक अच्छी ड्रेस की कीमत क्या होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, और अन्य अवसर के ऊपर भी ये काम आ जाए। समथिंग वेरी सिंपल, और थोड़ी सी सिंपल हो, क्योंकि बेचारा क्लर्क था। ही कुडंट पे मच फॉर द ड्रेसेस। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड, उसने कुछ टाइम सोचा। थिंकिंग, ये सोचते उसने विचार किया, of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk। economical होता है थोड़ा सा लोभी, जिसकी रिसोर्सेज इनकम के कम हो तो देखना भी होता है। उसने सोचा कि कहीं ये लो इनकम का व्यक्ति उस रेट को सुन के, कॉस्ट्यूम की कॉस्ट को सुन के कहीं एकदम से इनकार ना कर दे, तो उसने उसको इस बारे में उसने सोचा। फाइनली शी सैड इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते उसने कहा अपने पति को, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही से तो नहीं बताऊंगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought टू अरेंज इट, कि कहा कि 400 जो फ्रैंक्स हैं वो सही रहेंगे, इसको काम चल जाएगा। ही टर्न्ड ए लिटिल पील, बेचारे का चेहरा पीला पड़ गया। फॉर, क्योंकि, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन that he might be able to join some hunting parties next summer,
उसने 400 रुपये बचा रखे थे, 400 फ्रैंक्स, एक गन लाने के लिए, ताकि हंटिंग एक्सपेडिशन में अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाए, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। लार्क पक्षी को शूट करने के लिए हंटिंग एक्सपेडिशन जो था फ्रेंड्स का, उसके साथ उसको जाना था, और 400 रुपीज़ की गन आनी थी, वो उसने बचा रखे थे। नेवरदलेस, ऐसा होने पर भी आंसर्ड वेरी वेल, ठीक है। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ 400 फ्रैंक्स, लेकिन कोशिश करना, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की तुम कोशिश करना। So we will wind up the video, students, here, and the next part of this video will be taught to you in the next video. And this lesson clearly convey the message that student, it is very, you must be practical. Don't go beyond your resources. इनकम आपके जितने उससे आगे न बढ़े, यही मैसेज कन्वे करना चाहता है कि you should spend as much money as you can afford, not more or beyond your income or resources. So with this message, and hope you enjoyed this lesson very well, this part of this lesson, necklace, and you will be a considerate student. Apply this rule in your life and study this, meditate this, and may God bless you all. Have a great day.